Hello students, how are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School, Jadeshwar. Welcome back to our English class. So students, as you remember that we have completed our unit 6 from the course book, that is the chapter At Least a Fish and the poem Alien Exchange. So today we would be continuing with our grammar portion for the PT3 syllabus. You already know that we have completed chapter number 15 regarding future tense, and today we would be continuing with chapter number 16, that is subject verb agreement. So students, I request you to open your textbook Adventures with Grammar and Composition, page number 67. So let's start our today's class for the chapter subject verb agreement. So students, do you have any idea about what is verb? Well, verb means the action words. It shows what action is going on and who normally carries out that action. That might be a person or a thing or animal or a place, right? So that is considered to be a subject, means the doer of the action. The verb describes the action and one who does that action is called subject. So there should be an agreement between both of them regarding numbers. So first let's see this topic. Take out page number 67. So here you all know grammar, GT, post and Mac so well that you can match the following correctly. So let's just match it first. GT likes dancing, Mac flies, Grandma and friends travel through space. Post and GT are best friends and each of them is special. Do you like them? So these are some sentences which are true for the characters over here. Now let's move on towards our today's topic. The first we will learn about the subject. The subject of the sentence is who or what the sentence is about. सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में जो सेंटेंस है वो कहता है कि कौन है सब्जेक्ट, या फिर सेंटेंस उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है क्या है और कौन है. ठीक है, दैट इज़ द सब्जेक्ट. एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन. मतलब जो एक्शन कर रहा है, मतलब जो वर्ब है, एक्शन वर्ड है, वो जो कर रहा होगा, दैट माइट बी द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. नाउ let's see what kind of subjects we can have. A subject that refers to one person, place, thing or idea is singular in number. That means जो सब्जेक्ट एक पर्सन या एक प्लेस, एक थिंग या एक आइडिया को रेफर करता है, दैट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग सिंगुलर थिंग, देन दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड टू बी सिंगुलर इन नंबर. मतलब अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा. वैसे ही अगर अ सब्जेक्ट दैट रिफर्स टू मोर देन वन इज प्लूरल इन नंबर. एज यू ऑल नो सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट? सिंगुलर मतलब एक होता है एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन. सो इफ द सब्जेक्ट इज टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन और प्लेस और थिंग और आइडिया, देन दैट सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी प्लूरल सब्जेक्ट. ओके, सो आपको समझ में आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट. विल सी द एग्जाम्पल्स ओवर हियर. फ्रेंड्स ट्रैवल. सो यहाँ पे ट्रैवलिंग वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट क्या है हमारा? फ्रेंड्स. ओके, सो फ्रेंड्स ट्रैवल, दैट इज प्लूरल. फ्रेंड्स रिफर्स टू मोर देन वन फ्रेंड, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल. लेट्स सी द सेकेंड वन. पोस्ट एंड GT आर फ्रेंड्स. नाउ इफ यू सी ओवर हियर देर आर टू ऑफ देम, पोस्ट एंड GT, मतलब एक से ज़्यादा हो गए, इसीलिए हमारे कितने सब्जेक्ट हुए? दो सब्जेक्ट हुए इस सेंटेंस में. सो दैट मीन्स ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन गया. इट्स नॉट अ सिंगुलर वन, इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट. GT लव्स सिंगिंग. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? GT, एंड दैट इज सिंगुलर. डज ग्रामा सिंग? अगेन हियर वी हैव ओनली वन सब्जेक्ट, दैट इज ग्रामा, and so it is singular subject. So let's see the exercise A. We need to read the sentences below and underline the subjects. Write P in the box if the subject is plural.
and s if the subject is singular. So let's see the exercise. The first one, these flowers are plucked from our garden. So here students, do you have any idea subject क्या है हमारा? Well, these flowers, ये जो है वो हमारा subject है. Now what are they? Are they singular or plural? They are plural. So हमारा subject क्या हुआ? Plural. Now second one, our garden has many varieties of roses, daisies and zinnias. So we are talking about our garden. So यहाँ पे our garden ये क्या है? Singular है. We are talking about one garden, right? उसके अंदर वेराइटी है रोजेज और डेजीज एंड जीनियास की, बट गार्डन जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं वो क्या है? एक ही है. एंड सो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर. सो वी आर गोइंग टू राइट एस इन द बॉक्स. लेट्स सी द थर्ड वन. The roses and zinnias grow best in early summer. Now, as you see, there are two flowers we are talking about, right? Roses and zinnias. So, we are talking about two flowers and that too many. Roses मतलब बहुत सारे, एक रोज़ नहीं होता है, काफ़ी सारे roses and zinnias. So, here हमारा subject क्या हो गया? Plural. ठीक है? Now, let's see the fourth one. My grandparents take care of the garden. So यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? Grandparents, right? Because they take care of the garden. That means जो verb है वो क्या है? Take care करना. और वो कौन कर रहा है? Grandparents कर रहे हैं. तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो doer of the action होता है, right? मतलब जो एक्शन दिखा रहा है verb, वो एक्शन कौन कर रहा है? माई ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे हैं. तो ये हमारे सब्जेक्ट हुए और यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. दैट इज द फिफ्थ वन. दे एंटर मैनी कंपिटिशंस. नाउ स्टूडेंट्स, हियर दे इज द सब्जेक्ट. नाउ व्हाट डू यू थिंक दे क्या है? इट इज़ थर्ड पर्सन प्लूरल. ये दे जो प्रोनाउन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? थर्ड पर्सन प्लूरल को. सो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल. एंड लेट्स सी द सिक्स्थ वन. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन आवर गार्डन. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन आवर गार्डन. सो हियर आई इज द प्रोनाउन एंड इट इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट एंड इट इज़ सिंगुलर. तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? सिंगुलर. ठीक है? सो यू कैन राइट द आंसर्स इन द बॉक्स. आई विल सेंड यू द आंसर्स, ओके, अलॉन्ग विद दिस वीडियो. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. अभी हमने सब्जेक्ट के बारे में सीख लिया, राइट? सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस बात करता है वो, राइट? एंड सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. एंड डू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू कि सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर ऑफ द एक्शन होता है. मतलब सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो वर्ब करने वाला सब्जेक्ट होता है. ठीक है? नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट वर्ब्स. अभी वर्ब्स भी क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों. ठीक है? देर आर वर्ब्स विच कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. सो हियर देर आर सम एग्जाम्पल्स. जैसे सिंगुलर वर्ब के अंदर है रन्स, वॉक्स, डांसेस, इज़, वॉज, हैज़ एंड डज. अभी ये जो सारे स्टार्टिंग में है, ठीक है, ये रन्स, वॉक्स एंड डांसेस, यू कैन सी इट हैज़ एस अलॉन्ग विथ इट, राइट? नॉर्मली जब हम सिंगुलर प्लूरल नाउन्स में सीखते हैं तो जिसके अंदर एस लगता है वो हमारा प्लूरल नाउन होता है. लेकिन वर्ब्स के अंदर ये चीज़ अपोजिट हो जाती है. ठीक है? वर्ब्स के अंदर एस वाले जो वर्ब्स होते हैं जिसमें एस ऐड होता है, दोज वर्ब्स आर कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर. और जिसके अंदर एस नहीं होता है, दोज आर कॉल्ड प्लूरल. ठीक है? तो आप अगर नाउन्स जानते हो सिंगुलर प्लूरल तो उसका जो अपोजिट होगा वो वर्ब्स के लिए लगेगा. दैट मीन्स द वर्ब्स विच हैज़ एस इन इट और ई एस और आई ई एस, वो हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब. और जो बेस फॉर्म में होता है जैसे कि रन, वॉक एंड थिंक, दोज वर्ब्स आर विदाउट एस.
दे आर टू प्योर बेस फॉर्म, तो उसे हम प्लूरल वर्ब्स कहेंगे, ठीक है। Okay, now let's see the definition of subject-verb agreement. As we have learned that there is two things in a sentence which is very important. एक होता है subject और दूसरा होता है verb. ठीक है, तो जब हम sentence बनाते हैं उन दोनों के बीच में agreement होना चाहिए. agreement मतलब नंबर की बात में, ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर और प्लूरल होता है और वर्ब्स भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर हम एस लगाते हैं, मतलब जो नाउन्स के अंदर हम एस लगाते हैं, दोज आर प्लूरल नाउन्स, राइट, और प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन वर्ब के अंदर उसका अपोजिट होता है, ठीक है। अगर वर्ब के अंदर एस या ई एस है देन दैट वर्ब इज सिंगुलर, एंड अगर उसमें एस या ई एस नहीं है दैट मीन्स दैट इज प्लूरल, ठीक है। सो रिमेंबर दैट थिंग. Now let's see the definition. Definition of subject and verb agreement is the subject agrees with the verb in number. मतलब verb के साथ वो नंबर में एग्री होना चाहिए. That means कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द सब्जेक्ट मस्ट बी प्लूरल. दैट मीन्स दोनों ही चीज़ें प्लूरल होनी चाहिए. इफ़ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल योर वर्ब शुड बी प्लूरल, एंड व्हेन योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर मतलब एक ही है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल नाउन है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है. फ्रेंड्स इज द प्लूरल सब्जेक्ट. तो अभी फ्रेंड्स के साथ हमारा वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए. जैसे कि मान लो प्ले, ठीक है. सो अभी प्ले के अंदर ये प्ले कौन सा वाला फॉर्म है, विदाउट एस वाला फॉर्म है. दैट मीन्स इट इज़ अ बेस फॉर्म. सो फ्रेंड्स इज ऑल्सो प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, और यहाँ पे ये जो हमारा वर्ब है वो भी हमारा प्लूरल ही है, ठीक है. और अगर मान लो कि हम सिंगुलर की बात करते हैं, जैसे कि ही, ठीक है. तो यहाँ पे ये ही क्या है, हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, एंड अलोंग विथ इट इफ आई राइट ड्राइव्स, ओके, ही ड्राइव्स. सो यहाँ पे ये ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, और ड्राइव्स जो है उसमें हमने एस लगाया है, राइट. दैट मीन्स ये हमारा बेस फॉर्म वर्ब का कौन सा वाला हुआ, इट्स द बेस फॉर्म विथ साउंड एस. दैट मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है जिसमें एस लगाते हैं. तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है. सो डू यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो नाउ you need to remember this thing. So plural verbs don't end in s. You need to remember that, okay. Plural verbs s में end नहीं होते हैं, and plural subjects usually end with s, but the singular verbs end with s. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अगर s में एंड होते हैं मतलब उसके पीछे s लगता है, जैसे कि फ्रेंड हो और फ्रेंड्स हो, तो फ्रेंड क्या होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और फ्रेंड्स हो जाता है प्लूरल सब्जेक्ट. बॉय इज सिंगुलर एंड बॉयज आर प्लूरल. गर्ल इज सिंगुलर एंड गर्ल्स आर प्लूरल. बट दैट इज अनदर वे, और इट्स टोटली अपोजिट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ब्स, ठीक है. वर्ब्स के अंदर अगर हम बोलते हैं डांसेस, वॉक्स, प्लेज, थिंक्स, रन्स, तो इस सब के अंदर आपको एस का आवाज आता है, राइट. सो दोज वर्ब्स आर सिंगुलर. लेकिन अगर हम बोलते हैं वॉक, रन, स्लीप, थिंक, प्ले, तो ये सारे जो बेस फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लूरल वर्ब्स, ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग.
Let's see some examples over here. जैसे कि is, was, seems, needs, etc. are singular. Now here you need to remember one thing. Is and was जो है यहाँ पे is और was जो है, ठीक है, is and was, this two are to be forms, मतलब जो हम नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ करते हैं वो, ठीक है। और बाकी सारे वर्ब्स जो है जैसे कि seems जिसमें एड्स एस है, नीड्स, these words are also action words. Is and was are not action words, they are only verbs, but seems and needs are main verbs, or you can say those show the action, and that's why they are called action words. तो seems और needs जो है वो भी singular verb है, जैसे कि the peach seems ripe. Now you can see here the subject is singular, peach singular है हमारा subject, और उसके साथ seems जो है वो भी हमारा singular verb है, ठीक है। Now let's see the second one. Are, were, seem and need are plural verbs. The peaches seem ripe. Now are and were again ये दोनों कौन से फॉर्म है, to be वाले फॉर्म है, और ये हम लोग नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी जो है seem and need ये दोनों बेस फॉर्म है जिसके अंदर s नहीं है, सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी प्लूरल वर्ब्स। और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है पीचेस, सी उसके अंदर एस है ना, तो वो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, ठीक है। आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड अलोंग विथ इट द वर्ब विच इज बीइंग यूज्ड जो बेस फॉर्म है विदाउट एस, राइट। तो ये हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। सो यू नीड टू रिमेंबर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। ओके, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स सो दैट इट गेट्स क्लियरर। ओके, ऑलरेडी हमने एक एग्जाम्पल तो देख ही लिया है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन ओवर हियर। द कैट रन्स इनटू द वॉल। नाउ हियर एज यू सी सब्जेक्ट क्या है हमारा सेंटेंस का, कैट जो भाग रहा है, राइट। तो कैट क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और उसके साथ जो वर्ब है रन्स, वो देखो लिखा हुआ है, रन्स क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। रन्स RUN that is your runs that is your singular verb, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है हमारा। और उसके साथ जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द कैट, ओके, एंड दैट इज ऑल्सो सिंगुलर। नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। द कैट्स रन इनटू द वॉल। नाउ एज यू सी यहाँ पे जो हमारा कैट्स है, ठीक है, वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इट इज योर प्लूरल सब्जेक्ट, और उसके साथ जो वर्ब है दैट इज रन, रन विच डज नॉट हैव अ एस, ठीक है, रन के अंदर एस नहीं ऐड है, तो वो है हमारा प्लूरल वर्ब, ओके, रिमेंबर दैट इज अवर प्लूरल वर्ब। कैट्स रन इनटू द वॉल, सो कैट्स इज ऑल्सो प्लूरल and the verb run is also plural. Now let's see some more examples in your textbook. So take out page number 68. Okay, as I told you that singular subjects take singular verbs and plural subjects take plural verbs. It is important that a verb should agree in number with its subject. मतलब subject verb agreement का मतलब ही वही होता है कि subject और verb के बीच में agreement होना चाहिए। कौन से मामले में, in numbers. So let's see some examples over here. Singular subject agrees with singular verb, जैसे कि Grama is the leader.
यहाँ पे इज़ जो है जैसे हमने पढ़ा अभी, दैट इज़ द टू बी फॉर्म, ठीक है। और मैक फ्लाइज, तो यहाँ पे जो फ्लाइज है दैट इज़ अगेन द सिंगुलर वर्ब, ठीक है। हमारा प्लूरल वर्ब क्या होगा, फ्लाई होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हमने हमारे जो वर्ब है उसको भी सिंगुलर कर दिया है, मतलब उसके अंदर हमने ES का एडिशन किया है, ठीक है। IES का एडिशन किया Y निकाल के। नाउ लेट्स सी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट एग्रीज विथ प्लूरल वर्ब, जैसे कि माई डॉग्स लव गोइंग फॉर वॉक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो माई डॉग्स दैट इज़ प्लूरल सब्जेक्ट एंड वॉट दे डू, दे लव गोइंग टू वॉक्स। तो यहाँ पे लव हमारा जो है वो है प्लूरल वर्ब, ठीक है, बिकॉज it is base form, it does not have s in it. In the same way, the second sentence over here you can see grandma and friends travel through space. So grandma and friends ये क्या है, हमारा plural subject है, ठीक है, it's a plural subject and along with it travel is also a plural verb, okay, that is your plural verb. So I hope that you are clear what is subject verb agreement, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। और जैसे हम सब्जेक्ट के अंदर अगर एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है, वैसे ही अगर हम वर्ब के अंदर एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाएगा। दैट इज़ द मेन डिफरेंस, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। नाउ लेट्स सी दिस टेबल जिसके अंदर बी और डांस के फॉर्म के साथ एग्रीमेंट कैसे एग्री होता है, सब्जेक्ट कैसे एग्री होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। नाउ सी ओवर हियर, सब्जेक्ट व्हेन यू यूज़ आई उसके साथ आपका टू बी फॉर्म क्या होगा, एम, यू के साथ आर, ही शी इट के साथ इज़, वी आर, यू आर एंड दे आर। सो यू नीड टू रिमेंबर that we use am along with I जो to be का फॉर्म है। उसके बाद हम थर्ड पर्सन, जो हमारा थर्ड पर्सन है सिंगुलर थर्ड पर्सन, ठीक है, ही शी एंड इट, उसके साथ ही सिर्फ इज़ यूज़ करते हैं। उसके अलावा यू, वी एंड दे, उनके साथ हम आर यूज़ करते हैं। यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। You we use for both singular and plural second person, ठीक है, हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं वो। Now let's see the subject and verb agreement with the verb dance. डांस के साथ कैसे होता है वो देख लेते हैं। See here, I dance, ठीक है, फिर you dance, he she it dances, we dance, you dance and they dance. So here you need to remember कि जब हम एक्शन वर्ड के बारे में बात करते हैं at that moment we are going to add s and es only with third person singular. So यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, he, she and it, right? So along with he, she and it which represents third person singular, उसके साथ ही हमारा जो वर्ब है वो एस वाला फॉर्म होगा, एस या ES वाला फॉर्म, ठीक है, जैसे कि डांसेस, तो यहाँ पे हमने एस ऐड किया है, ठीक है। बाकी सबके साथ हमें बेस फॉर्म ही यूज़ करना है। आई डांस, यू डांस, ही शी इट डांसेस होता है और फिर वी, यू एंड दे अगेन बिकम्स डांस। एज यू अंडरस्टूड व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देयर इज वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, ओके। हियर यू कैन सी वर्ड्स लाइक ईच, वन, everyone, no one, nothing, everything, anything, ये सारे जो वर्ड्स है वो कौन से वाले सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके साथ जो हमारा वर्ब जाएगा वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, जैसे कि ईच ऑफ देम इज़ स्पेशल। सो हियर यू कैन नोटिस
that when we have used each of them, उसके साथ जो हमारा verb है that is वो क्या है? Singular है. ठीक है? In the same way, you can see the second sentence. Everyone is present today. Here again, the word everyone represents each one of them. ठीक है? Everyone मतलब हर कोई, मतलब एक एक एक, तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ. तो उसके साथ जो हमारा वर्ब है वो है इज, दैट इज ऑल्सो सिंगुलर. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर क्लियर विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, जिसके अंदर दोनों के नंबर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए. मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है अगर उसमें एस एडेड है दैट मीन्स इट इज़ प्लूरल. लेकिन अगर वर्ब के अंदर एस आता है या ई एस आता है तो वो हो जाता है सिंगुलर. ठीक है? और उसका उल्टा होता है, अगर वर्ब के अंदर एस या ई एस नहीं है, बेस फॉर्म है, देन दैट इज योर प्लूरल वर्ब. ओके? एंड द सिंगुलर सब्जेक्ट्स डज नॉट हैव एस इन इट. ठीक है? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द एक्सरसाइज, that is exercise B on page 69. Now read the following sentences. Tick right the correct verbs so that the subject and the verb agree with each other. So you need to find out which verb agrees with the subject in number. ठीक है? हमको ये देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए. Let's see the first one. Mac is or are asking question. So here you can see Mac is singular subject. तो उसके साथ जो हमारा verb होगा वो भी singular, that means is आएगा. Mac is asking question. ठीक है? Second one. R is the teacher in his office. So here students, आर और इज़ विच एवर वी आर गोइंग टू यूज़ दैट इज़ अवर हेल्पिंग वर्ब, और वो क्वेश्चन बनाने के टाइम पे हम आगे ले लेते हैं. और हमारा सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? द टीचर, एंड द टीचर इज़ सिंगुलर, तो उसके साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो क्या होगा? इज़ द टीचर इन हिज ऑफिस. लेट्स सी द थर्ड वन. एवरीवन इज़ और आर डांसिंग टू द सेम सॉन्ग. वी स्टडीड दिस रूल फ्यू मिनट्स बैक. एवरीवन मतलब हर कोई, राइट? तो वो सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो उसके साथ का जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा. सो द आंसर विल बी इज. एवरीवन इज डांसिंग टू द सेम सॉन्ग. नाउ फोर्थ वन. इज और आर यू रीडिंग दिस बुक? ये नाउ हियर द सब्जेक्ट इज यू, एंड एज वी हैव लर्नड कि वेदर द यू इज सिंगुलर और प्लूरल, उसके साथ हमें जो वर्ब यूज़ करना है वो होगा आर. दैट मीन्स आर यू रीडिंग दिस बुक? नाउ फिफ्थ वन. टॉम आर और इज़ चेजिंग जेरी अराउंड द हाउस. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ओवर हियर? येस, टॉम इज़ द सब्जेक्ट एंड इट इज़ सिंगुलर. सो हमारा जो वर्ब है वो क्या होगा? सिंगुलर. और कौन सा वर्ब सिंगुलर है? इज़. So Tom is chasing Jerry around the house. Let's see the sixth one. The astronauts are or is waving at us. Here the subject is astronauts which is plural. So उसके साथ जो हमारा verb है वो क्या आएगा? are, because are is plural verb. The astronauts are waving at us. Seventh one. I are or am writing a story about dragons. Along with I, we use am. Okay? You need to remember, हम I के साथ क्या यूज़ करते हैं? am यूज़ करते हैं. I am writing a story about dragons. Last one. Aladdin rubs or rub the lamp and a genie appears or appear. Now here Aladdin is singular subject, तो उसके साथ जो हमारा verb है वो भी singular होगा. सो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा वाला सिंगुलर है? रब्स या रब? वी हैव लर्नड दैट जिसके अंदर एस होता है वो होता है हमारा सिंगुलर वर्ब. दैट मीन्स अलादीन रब्स द लैम्प एंड अ जीनी
and a genie appears or appear. Again a genie is singular subject, तो उसके साथ का वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए. दैट मीन्स appears. ठीक है. Aladdin rubs the lamp and a genie appears. So students, I think that you are clear with this exercise. So you need to complete it in your textbook. Now let's see exercise C. Read the passage. Identify and underline the verbs that don't match their subjects. Then rewrite the passage using correct form of those verbs. So here the subject and the verb don't agree. ठीक है. ये जो पैसेज दिया है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब एग्री नहीं करते हैं, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है और फिर वापस पूरा पैसेज लिखना है. ओके, सो लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ब्स दैट डोंट मैच देयर subjects. Agatha are feeling lonely. Now as you see, Agatha is singular, right? She is only one girl. तो उसके साथ का जो वर्ब है वो आर नहीं होना चाहिए, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. Agatha is feeling lonely. Her elder sister Madge are popular because she writes stories and plays. Now here you can see her elder sister Madge. ये एक ही लड़की का नाम है. सो वहाँ यहाँ पर वापस सिंगुलर वर्ब यूज़ होना चाहिए, उसकी जगह पर प्लूरल यूज़ हुआ है. सो वी विल राइट her elder sister Madge is popular because she writes stories and plays. Now here what is she doing? यहाँ से आपका दूसरा सेंटेंस है, जैसे कि शी राइट स्टोरीज एंड प्लेज. अभी शी क्या है? हमारा सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ का जो वर्ब है वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए वर्ब. बट राइट इज़ प्लूरल, तो यहाँ राइट नहीं आएगा, उसकी जगह पे हमें लिखना होगा राइट्स. बिकॉज शी राइट्स स्टोरीज एंड प्लेज. वन डे अगाथा फॉल ill. Now again here Agatha is singular. यह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. और ये जो fall है वो क्या है? प्लूरल वर्ब है. सो वापस गलत है यहाँ पे. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे fall की जगह पर? Agatha falls ill. Her mother bring her a notebook. Her mother. Here this is again a singular subject. और उसके साथ का जो वर्ब है वो प्लूरल है. दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग. सो वी विल यूज़ हर मदर ब्रिंग्स हर अ नोटबुक. मदर आस्क हर टू राइट. यर मदर इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ सिंगुलर, तो उसके साथ आएगा आस्क्स. ठीक है. मदर आस्क हर टू राइट. Agatha begin to write mysteries. Again Agatha is singular and along with it this verb is plural. So हमारा singular verb क्या होगा? Begins. Agatha begins to write mysteries. Agatha grow up to be the famous mystery writer Agatha Christie. Here again in the last sentence Agatha is singular subject and so along with it the verb has to be singular. Grow क्या है? प्लूरल है. ठीक है. तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा? grows. Agatha grows up to be a famous mystery writer Agatha Christie. So I would be sharing you the image over here. So students, here you can see the passage which is written again. Agatha is feeling lonely. Her elder sister Madge is popular because she writes stories and plays. One day Agatha falls ill. Her mother brings her a notebook. Mother asks her to write. Agatha begins to write mysteries. Agatha grows up to be a famous mystery writer Agatha Christie. So students, here you can see कि सारे ही सब्जेक्ट्स हमारे जो है
our all the subjects in this sentence is singular. लेकिन उसके साथ जो प्लूरल उसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल लिखे हुए थे, तो हमने सारे ही वर्ब्स को वापस सिंगुलर वर्ब बना दिया. ठीक है. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर क्लियरली. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the live class and I would be sharing the answers with you. I would be sending you the PDF for this exercises. और आपको ये exercises आपकी टेक्स्ट बुक में ही complete करनी है. Exercise A, B and C. And if you have any doubts, please let me know in our live class. Till then, take care and see you soon.